Hello students, today we are covering the distance vector routing and count to infinity problem in that. This is part 2 of routing algorithm. First term we will discuss it here is flooding. Another static algorithm is flooding, in which every incoming packet is sent out on every outgoing line. फॉर एग्जाम्पल अगर एक नोड है हमारे पास और एक डेटा पैकेट अराइव होता है, तो अगर फ्लडिंग स्टैटिक एल्गोरिदम अप्लाइड है तो फ्लडिंग का सीधा सा कंसेप्ट ये है, स्टैटिक एल्गोरिदम है, जहां से भी डेटा पैकेट आया है उस पाथ को स्किप करके रिमेनिंग सारे पाथ पे आप उस डेटा पैकेट को फॉरवर्ड कर दीजिए. तो ये फ्लडिंग का बेसिक कंसेप्ट हो गया, जहां से भी डेटा पैकेट अराइव हुआ है उसके अलावा सब तक आपको उस पैकेट को पहुंचाना है. अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा? इसका एक ड्रॉबैक बेसिकली ये होगा कि अगर सारे पाथ पे एक डेटा पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है, तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि एक नोड ऐसा होगा जिसके पास वो वही पैकेट, फॉर एग्जांपल एक्स पैकेट फॉरवर्ड हुआ है ए बी सी डी सारे नोड्स के पास, ठीक है. अब हो सकता है डी के पास वो डेटा पैकेट बहुत सारे पाथ से आ रहा है, ठीक है, डी के पास एक्स पैकेट की मल्टीपल कॉपीज अराइव हो गई. दिस इज नोन एज डुप्लीकेसी ऑफ डेटा, डुप्लीकेसी ऑफ पैकेट्स. तो इस डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए ये कंसेप्ट आया कि हमको डेटा पैकेट्स को कहीं ना कहीं डंप कर देना चाहिए. तो अब डंप करने के लिए कौन सा मैट्रिक यूज होना चाहिए? डंप करने के लिए एक मैट्रिक यूज किया, हॉप काउंटर. इनिशियली हॉप काउंटर को कोई वैल्यू से इनिशियलाइज किया और जैसे ही डेटा पैकेट हॉप टू हॉप मूव करता जाएगा उस डेटा पैकेट के हॉप काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी. जैसे ही वो काउंटर 0 हुआ, अब वो डेटा पैकेट आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, वो डंप हो जाएगा. इससे क्या होगा, जो डुप्लीकेट पैकेट्स है वो एक लिमिट तक ही आगे फॉरवर्ड होंगे, उसके बाद डंप हो जाएंगे, तो डुप्लीकेट पैकेट्स का काउंट डिक्रीज होगा. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्लडिंग. अब फ्लडिंग का एक और मॉडिफाइड वर्जन आया, दैट इज सिलेक्टिव फ्लडिंग. व्हाट डज सिलेक्टिव फ्लडिंग सेज? इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ऑन ईच लाइन, ऑन ईच आउटगोइंग लाइन, आप क्या करो, कुछ सिलेक्टेड पाथ पे ही उस डेटा पैकेट को फ्लोट करो, ठीक है. And what is the drawback of flooding? Flooding is not practical in most application. Now, the next routing algorithm is distance vector routing. Now, this is dynamic routing algorithm. In distance vector routing, algorithm operate by having each router maintain a table, and that table is known as a vector, and they're giving the best known distance to each destination and which line to use to get there. In this, each router maintains a table known as routing table. It contains one entry for each route in the subnet. This entry has two parts. First part gives the estimate of the time or distance. This time or distance will be a metric, which metric we are using. If we are using time as a metric, then that will be a time. If I'm using delay as a metric, then it will be a distance. The second part shows the preferred outgoing line. Now see, there can be three type of metric. One can use number of hop as a metric, one can use time delay as a metric, and number of packets in a queue can be also be considered as a metric. Now let us see an example of distance vector routing. Let us see that we are given with this subnet, okay, and this is my router. I'm considering I as my router. Now I can see that I has two neighbors A and H, okay. Now I will maintain a vector for A and H, okay. So you can see here there is a vector for A and H, and as I am considering delay as my metric, then these vectors will be having टाइम डिले एज अ वैल्यूज. अब इन वेक्टर्स में क्या वैल्यूज होगी, कितना डिले लग रहा है वो एज अ वैल्यूज फिट होगा. ये सारी वैल्यूज अज्यूम्ड है. दिस शेडेड पार्ट 10 क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस शो दैट द डिले फ्रॉम ए टू बी इज 10 millisecond. Similarly, this value is showing delay from A to node D is 38 millisecond. Now for a vector for H, so this 20 value is showing that the delay from node H to A is 20 millisecond. Similarly, this 0 value is showing delay from node H to node H is 0, obvious. Similarly, this delay from A to A is 0. So these are two delay vectors for node A and node H. And we are assuming that I to A delay is 8 millisecond and I to H delay is 12 milliseconds. Okay. So these are two delay vectors of node node A and node H. Now
The B part is showing new routing table for router. How this is formed? You can see this new estimated delay from for node, and this is this values. The first part is the first entry. The first part gives the estimate of time. So this is giving us the estimate of time, and the second part of table is giving us the outgoing link और किस path के through आपने ये entry की है. अब हम क्या अज्यूम करते हैं, अगर हमने अज्यूम करा कि ये वैल्यू कैसे फिल हुई है, हमको क्या देखना है कि ये वैल्यू कैसे फिल हुई है, कौन सी 31H. तो अब यहाँ पे सी तक पहुंचना है. आई से सी तक पहुंचने के दो पाथ हैं, थ्रू आई ए सी और थ्रू आई एच सी. पहले मैंने अज्यूम किया कि पाथ है आई ए सी. अगर आई ए सी जाना है तो आई टू ए डिले कितना है 8, और ए टू सी डिले कितना है हमारे पास 24. 24 प्लस 8 कितना हो गया 32. अब सेकेंड वैल्यू देखते हैं आई एच सी. अगर मैं आई एच सी वाला पाथ कंसिडर करती हूँ तो आई टू एच डिले कितना है मेरे पास 12. एच टू सी डिले कितना है 19. 12 प्लस 19 इज 31. मिनिमम ऑफ 32 और 31 इज 31. तो कौन सा पाथ लेंगे हम, जो एच के थ्रू जा रहा है. इसलिए यहाँ पे एंट्री क्या हुई, आई टू सॉरी सी जाने के लिए हम ले रहे हैं 31 डिले, और किस किस आउटगोइंग एज के थ्रू जाएंगे, एज के थ्रू. एक और वैल्यू देखते हैं, अगर आई टू जी पहुंचना है, आई टू जी जाना है तो दो पाथ है, थ्रू आई ए जी और आई एच जी. ओके देखते हैं, आई टू जी जाना है, आई से ए का डिले है 8 और ए टू जी का डिले है हमारे पास 16. 16 प्लस 8 इज 24. ओके, नाउ आई टू जी जाना है थ्रू एच. आई टू एच डिले है हमारे पास 12 और एच टू जी डिले है 6. 12 प्लस 6 इज 18. मिनिमम ऑफ 24 और 18 इज 18. तो विच पाथ इज कंसिडर्ड थ्रू एच. इस तरह से हम इस राउटिंग टेबल में एंट्री कर सकते हैं. कोई भी वैल्यूज लर्न करने की जरूरत नहीं है, सारी वैल्यू अज्यूम्ड है और आप कैलकुलेशन करके ये वैल्यूज फिल करते जाएंगे. ठीक है, अब आई टू ए जाना है, फर्स्ट एंट्री यू कैन सी आई टू ए जाना है. तो आई टू ए का डिले हमारे पास डायरेक्ट, क्योंकि आई टू ए डायरेक्टली कनेक्टेड है, किसी के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है. डिले कितना है 8 और आई टू ए जाने के लिए हम कौन सा बात ले रहे हैं, ए. सिमिलरली आई टू एच जाना है, आई टू एच जाना है, ये वाली अगर एंट्री फिल करनी है तो डिले कितना है 12 और किसके थ्रू जाएंगे हम, एच. क्या आई टू ए आई जा सकते हैं, नहीं. तो क्या हुआ, डिले 0 एंड डैश. सिमिलरली अगर आई टू एफ की एंट्री फिल करनी है तो कैसे करेंगे, आई टू एफ की एंट्री फिल करनी है तो हम कैसे फिल कर सकते हैं, दो पाथ होंगे आई ए एफ एंड आई जी एफ. आई ए की डिले कितना है 8 और ए से एफ तक का वैल्यू कितना है डिले का 24. 24 और 8 अगेन 32. नाउ आई एच एफ वाला देखते हैं, आई एच एफ का डिले 12, एच से एफ का डिले 19. 12 प्लस 19 इज 31. सो 24 और 8 था 32 और 19 और 12 था 31. विच वन इज मिनिमम, सो एच वाला मिनिमम है तो यहाँ पे आएगा 31 और थ्रू एच. दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म द राउटिंग टेबल. इस तरह से हर नोड अपने लिए डिस्टेंस वेक्टर मेंटेन करता है और ये उसकी रूटिंग टेबल है. ठीक है, और यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन गो थ्रू दिस. Now, what are the drawbacks of distance vector routing? The problem with distance vector routing is its slowness in converging to the correct answer. This is due to the problem known as count to infinity problem. We will see in the next class. And the second one is it does not take the line bandwidth into consideration while choosing route. तो अब दो प्रॉब्लम्स है, एक तो ये लाइन बैंडविड्थ का कंप्लीट यूज नहीं करता है और सेकंड वन इज काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम. काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगी. ये आज के लिए इतना है. ओके, थैंक यू.